تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ ہم جو رقم کسی کو دیتے ہیں اس کی تین صورتیں، یا تو بطور امانت دیں گے، یا بطور قرض دیں گے، یا بطور انویسٹ دیں گے۔ امانت کیا ہوتی ہے؟ امانت کو خرچ نہیں کیا جا سکتا، اس کی پوری طریقے سے حفاظت کرنا ہوتی ہے۔ قرض کا مقصود خرچ کرنا ہوتا ہے۔ امانت اور قرض میں بڑا فرق یہ ہے، قرض حسنہ وہ ہوتا ہے جس پہ کوئی نفع نہ لیا جائے، بغیر کسی ذاتی لالچ کے سامنے والے کو دیا جائے، اس کی مدد کے طور پر، نیکی، احسان اور بر کے طور پر۔ جو رقم بطور انویسٹ دی جائے اسے راس المال یا کیپٹل کہتے ہیں۔ یہ رقم کسی دوسرے کو نفع و نقصان کی بنیاد پر دی جاتی ہے۔ الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضات الخالی عن عوض شرط فیہ۔ سود اس اضافے کو کہتے ہیں کہ جو اضافہ مشروط ہو کہ یہ اضافہ کرنا ہی کرنا ہے، اور وہ اضافہ کسی چیز کے بدلے سے، معاوضے سے خالی ہو۔ سود کی پہلی قسم قرض پر نفع کی صورتیں۔ قرض پر نقدی نفع لیا جائے، 1,00,000 کس نے دیے، 1,10,000، 1,01,000، 1,02,000، 1,01,000 روپیہ بھی لے گا، یہ بھی سود ہوگا۔ نفع کی دوسری قسم کون سی ہے کہ قرض پر ہاتھ میں تو کچھ نہ ہے لیکن کچھ سہولتیں مل جائیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا۔ قرض سے جو بھی نفع اٹھایا جائے وہ سود ہے۔ پیسے تھوڑی لے رہے ہیں ہم، حرام ہے ہمارے اوپر تو پیسہ لینا۔ لیکن بہت سارے حاجی، نمازی، داڑھی والے اس دوسری قسم میں اس لیے مبتلا ہوتے ہیں کہ انہیں کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ بھی سود ہے۔ پینٹ کے ڈبے میں ٹوکن ڈال دیا گیا ہے، مثال کے طور پر 5,000 کا ڈبہ ہے اور اس میں 500 روپے ڈال دیے۔ سب کو پتہ ہے کہ اب یہ ڈبہ جناب 4,500 کا ہے، اس میں کوئی کبات نہیں ہے، شریعت سے کوئی طریقہ نہیں ٹکراتا، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دکاندار نے تو کمپنی کا سیل پیک ڈبہ بیچنا تھا، اس نے بیچ دیا، اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی، وہ کیوں باؤنڈ ہے کہ جناب وہ واپس آئے اور دکاندار اپنی جیب سے پیسے دے اس کو؟ چلو ٹھیک ہے، یہاں تک بھی جائز ہے، دے دے وہ جیب سے پیسے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کسی پارٹی کو چیک دینا ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہے، آپ اپنے دوستوں کو یار آپ ذرا چیک دے دو، اس نے آپ کے بیاہ پر دیا ہے نا، یہ قرضہ ہے۔ گاہک کو رنگ کا ڈبہ بیچنا تجارت تھی، لیکن گاہک کو ٹوکن کے پیسے دینا تجارت نہیں ہے۔ یہ دکاندار نے کمپنی کی بیاہ پر قرضہ دیا ہے، ٹھیک ہے، جتنا دیا اتنا واپس لے لے، جائز۔ لیکن کمپنی ان دکانداروں کو اوپر پیسہ دیتی ہے، اس لیے کہ اگر ہم ان کو پیسے نہیں دیں گے تو یہ گاہکوں کو منع کر دیں گے کہ ہم آپ کو کیش نہیں دے رہے۔ عمرے پہ جا کے میں نے 5 اسٹار ہوٹل میں ڈیلی کا 2,000 درہم پے کرنا ہے، میں نے پورا مہینہ وہاں مکے مدینے کی برکتیں لوٹنی ہے۔ مکے مدینے کی برکتوں کا تعلق 5 اسٹار ہوٹل سے تو نہیں ہے نا، کعبے کے نور سے، گنبد خضرا کے نظاروں سے۔ ہم نے کچھ چیزوں کو اس طور پر اپنی مجبوری بنایا ہوتا ہے جی میرا سٹیٹس جو ہے وہ نیچے آ جائے گا، اچھے بڑے گھر میں رہ رہے ہیں، سود پر پیسہ لے کے بنگلہ لیں گے، جی میری ذرا PR بن جائے گی۔ سود کی 2 قسمیں کی ہم نے، کون کون سی؟ قرض پر نفع اور مخصوص چیزوں کے تبادلے پر پائے جانے والا سود۔ قرض والے نفع کی ہم نے کتنی صورتیں کی؟ 2 صورتیں کی، کہ جہاں نقدی کی صورت میں سود دیا جاتا ہے، اور دوسری صورت کیا؟ جہاں پر بینیفٹ کی صورت میں قرضے پر نفع ملتا ہے۔ ابھی تک ہم نے اس پر گفتگو کی، اب ہم اس پر چلتے ہیں۔ قرض پر لیا جانے والا کوئی بھی نفع ہو، قرض کی بہا پر کوئی بھی نفع وہ سود کے حکم میں ہے، کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا۔ قرض کی بنیاد پر جو بھی نفع اٹھایا جائے گا وہ سود ہوگا۔ اب اس کی مثالیں کیا ہیں؟ ایڈوانس کن مقاصد کے تحت دیا جاتا تھا؟ سیکیورٹی کے لیے۔ کس کے لیے؟ اب جناب معاملہ یہ ہے کہ بزنس مین پیسے میں کھیلتا ہے، کیلکولیٹر اس کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، اتنا مائنس، اتنا پلس، اتنا فائدہ، ڈن کرو جناب، ڈیل ہو کے۔ تو لوگوں نے اندازہ لگایا کہ اس کی مجبوری ہے دکان لینا، اس کو دکان چاہیے، اور میرے پاس دکان تو ہے لیکن
पैसे नहीं, दुकान तो है लेकिन पैसे नहीं है। दुकान वाला ही चाहता है कि उसके पास कुछ पैसे आ जाएं जिससे वो कारोबार करे। उसने कहा कि अच्छा तुम ऐसा करो, एडवांस तो हमारी मार्केट में चलता है 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए मुझे दे दो बयाने में, दुकान रख लो 1 साल के लिए, कोई किराया नहीं देना। हमने शुरू में क्या गुफ्तगू की थी कि जो ये एडवांस दिया जाता है इसकी हैसियत क्या है? कर्ज की हैसियत। अपने भाई को कोई दुकान मुफ्त नहीं देता, एक चाचा का पुत्र है, क्यों दी है? उस रकम के बदले में दी है जो इसने मार्केट से हटकर ज्यादा ली। जो एडवांस इसने ज्यादा लिया उसकी वजह से दो चीजें पाई जाती हैं। या तो बिल्कुल कह देते हैं कि जनाब ये मेरी दुकान है, ये मेरी जमीन है, काश्तकारी करो, ये एक घर है, मुफ्त में रहो, 1 साल तक कोई किराया नहीं होगा। या फिर ये होता है कि अच्छा आप ऐसा करें, किराया तो चल रहा है 20,000 रुपये, 5,000 रुपये दे देंगे। तो कर्ज देने वाले को फायदा पहुंचाया गया कर्ज की बुनियाद पर। अगर ये बयाना वही देता 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो मार्केट में राइज है, तो ये बेनिफिट दिया जाता है या नहीं? नहीं दिया जाता। तो ये बेनिफिट कर्जे की बुनियाद पर दिया जा रहा है। शरीयत में हर चीज का हाल मौजूद है। मदीना मुनव्वरा से मुझे एक बुजुर्ग ने फोन किया। बुजुर्ग इन माना में वो 40 साल हो गए मदीना मुनव्वरा रहते हुए, पाकिस्तान में आए। गुज़िश्ता 15 साल से तो मदीने से भी नहीं निकले थे। पिछले साल मक्का मुकरमा को जरूरी काम था, जाना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी ऐसे ही काम हो रहा है। यही होता है कि वो कहता है कि जी पैसे ज़्यादा दे दो, किराया इतना कम कर दूंगा। हल क्या है? तो उन्होंने एक सूरत बयान की ना, एक मिसाल बयान की। मैंने कहा ये जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। वो सूरत क्या बयान की? कहने लगे अगर मैं किराया, जो किराया बनता है ना, 3 साल का एडवांस दे दो, किराया एडवांस है। पहले आप ये समझें कि आज जो हो रहा है लाहौर में खास तौर पर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हजारों लोग कर रहे हैं, जो सूदी तरीका है कि 10 लाख रुपए जमा कराए। कितना होता है? 10 होता है, ज्यादा होता है। 10 लाख दिए, किराया बनता था 20,000, उसके बजाय 5,000 रुपये किराया मुकर्रर हो गया। जब एग्रीमेंट खत्म होगा तो 10 लाख रुपए क्या होंगे? वापस दिए जाएंगे। अगर ये तरीका ना हो, 3 साल का किराया आप उसको एडवांस दे दें, ठीक है? 10 लाख रुपए बनते थे, 3 साल का किराया 20,000 से कितना बनेगा? 2 लाख साल का बना। तो 2 4 6 और है 7,20,000। आपने उसको कहा 7,20,000 3 साल का एडवांस किराया है। 3 साल बाद जब आप दुकान बंद करेंगे या एग्रीमेंट आपका खत्म होगा, वो पैसे आपको वापस मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। और जो अब लोग कर रहे हैं उसमें वापस मिलते हैं? ये कर्जा है इसलिए वापस मिलते हैं। और एडवांस किराया तो हम दिन रात ही काम करते हैं। आप होटल बुक करते हैं, एडवांस जमा करवाते हैं। तो अगर कोई इस बुनियाद पर आपका किराया कम करता है कि मुझे 3 साल का एडवांस किराया दे दो, कोई हर्ज नहीं। यहां कर्ज नहीं पाया गया, यहां अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है बंदे का कि बंदा जब मेरे अहकाम आते हैं तो करेगा क्या। मैं सही अर्ज करता हूं, जब बंदा नेकी पर तैयार होता है ना, उसके लिए खुद ही राहें खुल जाती हैं। तो मुतबादिल सूरत मौजूद है, इस तरह कर ले, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उलमा से पूछ कर करें। मैं एक मिसाल बाज़ औक़ात बयान करता हूं। अरबी का एक मुहावरा है, फर्रा मिनल मतरी कामा तहतल मिजाब। मिसाल के तौर पर बारिश थी, सारे कपड़े गीले हो जाएंगे, किसी चीज के नीचे खड़े हो जाते हैं, तो यहां के खड़ा हो गया। ये था परनाला, वहां तो छींटे आने थे, यहां पूरा इसने भिग जाना है।
تو بعض اوقات آدمی کسی کام کو صحیح کرنے جا رہا ہوتا ہے، اتنی بڑی غلطی کرتا ہے کہ اس سے پہلے والی غلطی سے کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ سوچ رہا ہوتا ہے یوں کر لوں، ہاں یوں کر لیتا ہوں، خود ہی منصف، خود ہی جج، خود ہی سب کچھ۔ جس کی فیلڈ ہے ان کے پاس جائیں، علماء کے پاس بیٹھیں، مشورہ کریں، سمجھیں۔ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات بندہ سمجھ نہیں ہو رہا ہوتا، یہ ہمارا تجربہ ہے کہ پہلی دفعہ جب بھی کوئی بات پتہ چلتی ہے تو ذہن میں پہلے جھٹکا لگتا ہے، اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ذہن قبول کرتا ہے۔ ایک نفسیاتی معاملہ ہے، ایک فطرتی معاملہ ہے، نیچرل معاملہ ہے یہ۔ تو کوئی بھی اس طرح کا نیا کام کرنے لگے رہنمائی لیں علماء سے۔ دوسری مثال، ایک تو مثال وہی ہے کہ جناب یہ بالکل مفت میں لے لو، دوسری صورت یہ کرایہ آدھا ہو جاتا ہے۔ آج کل موبائل کمپنیوں نے ایک اکاؤنٹ شروع کروایا ہے کہ جناب آپ 2000 روپے جمع کروا دیں ہمارے پاس، آپ کے اکاؤنٹ میں 2000 سے کم اگر ہوئے تو ہم آپ کو یہ سہولت نہیں دیں گے، 2000 رہے، روز کے اتنے 100 فری منٹ ہے جناب، جو چاہے کریں آپ۔ بڑی مہربان ہوگی کمپنی ہیں، 1 لاکھ لوگوں سے 2000 جمع کرے گی تو کتنا پیسہ بنا؟ کیلکولیشن پلیز، کتنا بنا؟ 1 لاکھ لوگوں سے 2000 روپے لے کے 2 کروڑ اس نے جمع کر لیے، اور پاکستان بھر میں نہ جانے کتنے لوگوں نے اکاؤنٹ کھلوایا ہوگا، پتہ نہیں کتنا کروڑ روپے جمع ہو گیا اس کے پاس، تو وہاں سے یہ پورا کرے گی۔ لیکن اس نے یہ 2000 روپے کسی تجارت کے بدلے میں نہیں لیے، یہ کیا ہے 2000 روپے ہمارے؟ کمپنی کے اوپر قرضہ ہے، قابل واپسی ہے، جب چاہے وہ گاہک نکال سکتا ہے، کوئی سیکورٹی ڈپازٹ بھی نہیں ہے یہ کہ جناب اس کا لینا ضروری ہے۔ یہ وہ تو بلنگ والے میں ہوتا ہے کہ جناب آپ اتنے پیسے جمع کروائیں تاکہ آپ کا بل جمع ہو جائے تو ہم کم از کم اتنا ہو کہ 1 مہینہ آپ کو مزید سہولت دے سکیں۔ یہ تو نہیں ہوتا بل والے اس کے اندر کہ جناب یہاں 30 تاریخ ہوئی ہے وہاں آپ کا کنیکشن ختم ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ 1 مہینے کے انہوں نے پیسے رکھے ہوتے ہیں، پھر وہ جب 1 مہینہ آپ مزید نہیں دیتے پھر وہ کنیکشن بند کرتے ہیں۔ یہاں تو 2000 روپے لینے کا مقصد واضح ہے، یہ قرضہ ہے ہمارا، ہماری رقم، مطلب ہمارے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی رقم ہے، قرضہ نہ دیتا تو یہ نفع نہ ملتا، پیسہ تو ہاتھ میں نہیں آ رہا لیکن ایک بینیفٹ مل رہا ہے، روز کا اس بینیفٹ سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ بینیفٹ سودی بینیفٹ ہے، اس طرح کا ایگریمنٹ کرنے والا، فائدہ اٹھانے والا سود کا مرتکب ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کمپنیوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور چل رہا ہے جناب۔ حالانکہ ریگولیٹر جو ادارے ہیں ان کو کارروائی کرنی چاہیے، اتنا بڑا اماؤنٹ پبلک سے لیا جناب۔ آگے چلتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بہت کمزوری ہیں، بہت کمزوری ہیں۔ میں دبئی گیا تو ایک صاحب اپنی سائٹ پر مجھے لے کر گئے، بہت بڑا پروجیکٹ تھا ان کا، تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اگر کسی سے 5 منٹ میں ملتا ہوں نا تو اس سے پوچھتا ہوں آپ کیا کرتے ہیں، اچھا یہ کام ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، تاکہ مجھے معلومات حاصل ہوں۔ میری معلومات آج مجھے حاصل ہوں گی، ہو سکتا ہے اس کے متعلق کوئی آدمی 10 سال بعد سوال کر لے، میرا اپڈیٹ رہنا ان معنی میں ضروری ہے۔ ایک بڑی اچھی چیز مجھے پتا چلی، ہمارے کیا ہوتا ہے، لوگ فلیٹ بک کرواتے ہیں، فلیٹ جا کے 5 سال میں بنتا ہے، بیچ میں بلڈر بھاگ جاتا ہے۔ واقعی گورنمنٹ نے کیا نظام قائم کیا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی کسٹمر بلڈر سے معاہدہ کرتا ہے، ایک جوائنٹ اکاؤنٹ کھلتا ہے گورنمنٹ کے پاس، اور کسٹمر کی ساری رقم اس جوائنٹ اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے فلیٹ بک کروایا 1 کروڑ روپے کا، ڈاؤن پیمنٹ دیتے 10 لاکھ روپے، یہ 10 لاکھ روپے بلڈر کو نہیں ملے گی، گورنمنٹ کے پاس آئے گی۔ بلڈر آئے گا گورنمنٹ کے پاس، جی میں نے کھڈا کھودنا ہے، محکمہ بندے بھیجے گا، دیکھ کے کھڈا کھودنا ہے کہ نہیں اور کتنے پیسے کی ضرورت ہے، اس اکاؤنٹ سے اتنے پیسے دے گی۔ اس نے کسٹمر کو سیکیورٹی دی ہے
ये ना हो कि बिल्डर भाग जाए और कस्टमर जो है वो बेचारा रोड पर आ जाए और वो रोता पीटता रह जाए। एक निज़ाम कायम किया है। तो जो अरबाब इख्तियार हैं, जो हुकूमत में रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क के अंदर हलाल और हराम का निज़ाम बेहतर बनाएं, जो हराम है उससे लोगों को बचाएं, जो हलाल है उसको तरवीज करें, और जो हुकूक अम्मा है उसका तहफ़्फ़ुज़ करें। क़यामत के दिन पूछा जाएगा। मैं अगर एक गाहक को डील करता हूं तो मैं एक गाहक का रिस्क लेता हूं कि भाई हो सकता है मैंने एक गाहक से तुष लहजे में बात कर ली हो, बदमज़गी हो गई हो, या लेन देन में कोताही हो गई हो। जो आदमी 10 लोगों से डील करता है और 10 अफराद का रिस्क लेता है, तो यूं जिसकी जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उसके जो हुकूक का ताल्लुक है वो उतना ही बड़ा होगा। आगे चलते हैं जनाब। करंट अकाउंट में जो हमारी रकम होती है क्या होती है? कर्ज होती है ना। अब मार्केटिंग की दौड़ जारी है, गाहक बनाने की दौड़ जारी है। अब निकले करंट प्लस अकाउंट। आप ऐसा करें, अगर आपके अकाउंट में 50,000 रुपये होंगे कम से कम, ऑनलाइन सर्विस हमारी मुफ्त, हम आपसे SMS अलर्ट चार्जेस नहीं लेंगे। अगर आपके पास 5 लाख रुपए जमा हुए, हम आपको ये सहूलत देंगे मुफ्त, चेक बुक के पैसे नहीं लेंगे, मुफ्त। अगर तो बैंक ये सहूलतें सबको देता है, जिसके अकाउंट में 1 रुपया ना हो, जिसके अकाउंट में 1,000 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, तो हम ये नहीं कहेंगे कर्जे की बुनियाद पर देता है। अगर वो इस बुनियाद पर देता है कि इतने हज़ार हुए या इतनी अमाउंट हुई, तो हम ये रकम आपको, ये सहूलियत आपको देंगे। अगर वो ऐसा कहता है तो ये क्या है? कर्जे की बुनियाद पर ये नफा दिया जा रहा है। और लोग जो है वो, क्योंकि उनकी तवज्जो नहीं है, देख रहे होते हैं, जरा मालूमात तो करो कौन सा बैंक क्या क्या सहूलियत दे रहा है। आप सोच से बचे हुए हैं, जब भी तो आपने करंट अकाउंट खुलवाया हुआ है। आपका मकसद क्या था? वो पैसे बुरे थोड़ी लगते हैं किसी को। आप उन पैसों से इसलिए बचे, सेविंग अकाउंट आपने कमर्शियल बैंक में इसलिए नहीं खुलवाया कि सूद मिलेगा, लेकिन यहां आपसे चूक हो गई, आपको समझ नहीं पड़ी कि आपको कैसे फंसा लिया उसने। अगर उलमा से दूर रहेंगे तो ये फंसने फंसाने का सिलसिला जारी रहेगा। उलमा से करीब रहें। हमारे जो रोजमर्रा की टाइमिंग है उसमें हम कितने लम्हे दीन को देते हैं, दीन सीखने को देते हैं। पहले होता था इस जमाने में, सुबह का टाइम गली मोहल्ले से गुजरे तो कैसेट लगी होती थी तिलावत की, नात की। अब तो वो भी सुनाई नहीं देती। वो दुकानदार भी व्हाट्सएप पे लगा होता है किसी से। कमी आई कि नहीं आई? ये सुबह का टाइम जो दुकानों पे पिस्ता की चीजें चलती थी गली मोहल्लों में, बहुत कमी आ चुकी है। तो दीनी सरगर्मियों में रोज बरोज कमी आती जा रही है। और जो हम मसले सुनते थे उलमा, आप एक बात नोट कीजिएगा, उलमा के पास उठने बैठने वाला, सोबत में रहने वाला, उनसे मोहब्बत करने वाला गलतियां करेगा, लेकिन दिगर के मुकाबले में बहुत कम करेगा। बाद औक़ात ऐसा होता है बंदे को सब कुछ पता होता है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, लेकिन फिर भी उसका नफ्स, शैतान, लालच गालिब आ जाती है। लेकिन बहरहाल एक बरकतें होती हैं। अपने आप को थोड़ा सा कुछ वक्त दें, 15 मिनट, 20 मिनट, हफ्ते में 1 दिन दे दें कम से कम। मदनी मुज़ाकरा होता है, अमीर अहले सुन्नत सवालों के जवाब दे रहे होते हैं। हमारे नफ्स पर भी हाथ होता है आपका, हमारे दिल पर भी निगाह होती है। दिल की बातें भी करते हैं ना, ये काम तो आप कर रहे हैं लेकिन आपकी नीयत सही है कि नहीं है। हमारे दिल को भी जो है ना वो खंगाल रहे होते हैं, हमें तरबियत भी दे रहे होते हैं। कम अज़ कम इतनी नियत करें तो मदनी मुज़ाकरा जिस दिन होता है, हर हफ्ते को होता है, मदनी मुज़ाकरा आप देखेंगे। आप इशा के बाद शुरू होता है, रात के 12 बजे तक जारी रहता है। आप खुद को करीब रखेंगे। यानी कितने ऐसे लोग हैं, आप यकीन माने, मैं
बहुत सारे अरब मुल्कों में गया हूँ। मैं इराक में हाजिर हुआ, बुजुर्गों से पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की 11वीं शरीफ के मौके पर हाजिर हुआ था। कई अरबी मुझे मिले, नहनु ला नारिफ अय्य शैइन मिन उर्दिया वलकिन नहनु नरा शेख। हमें उर्दू नहीं आती, हम बस हम शेख को देते हैं, हम रुक जाते हैं वहां पर। यकीन मानिए कई अरबी मुझे मिले। मैं पिछले दिनों ओमान गया, वहां कुछ अरबी मिले। हमें समझ कुछ नहीं आती, हम देखते हैं। मैं मुल्क में उलमा कॉन्फ्रेंस में हाजिर हुआ, बड़े बड़े उलमा दुनिया भर से आए हुए थे। कहने लगे कि समझ तो हमें भी नहीं आती, क्योंकि नेल सेट अरब में चलता है, यहाँ हमारे यहाँ एशिया सेट चलता है, नेल सेट चलता है। नेल सेट पर भी मदनी चैनल मौजूद है। तो उनके यहाँ जब वो आगे पीछे करते हैं, चैनल तो आता है, रुक जाते हैं। लेकिन शेख जब आ रहे होते हैं तो हम रुक जाते हैं। शेख के अंदर ऐसी कोई बात है कि दिल ही नहीं करता है आगे जाएं। अब हम थोड़ा रिवर्स जाते हैं। एक मिनट, 3-4 बड़ी अहम मिसालें रह गई हैं, फिर रिवर्स जाएंगे। हमारी फ्रूट मंडियों में, सब्जी मंडियों में फ्रूट और सब्जी ना आए तो हम क्या करेंगे? यानी हमारी एक बेसिक ज़रूरत है। उलमा ने एक बहस की कि तिजारत अफजल है या काश्तकारी अफजल है। किताबों के अंदर ही बहस हुई। तो अक्सर उलमा को रुझान इस तरफ था कि काश्तकारी अफजल है, क्योंकि ये बुनियादी ज़रूरतों पर मुश्तमिल है। बाकी तिजारतें एक इजाफी चीज़ है, तिजारत से काश्तकारी अफजल है। अक्सर उलमा का ये रुझान था। तो काश्तकारी, फूड, सब्जियां, ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है। आटा हमें वहीं से मिलता है, गंदम का खाएं या मकई का खाएं, वहीं से आएगा। खाने की चीज़ मसनूई तो कभी पैदा ही नहीं हो सकती। ये जो दवाइयाँ हम खाते हैं गोलियों की शक्ल में, ये भी कुदरती चीज़ों से ही बनती हैं। इन मार्केटों में भी सूद आ चुका है। आड़ती बाउंड करता है किसान को पैसे चाहिए होते हैं। हाँ, मैं कर्जा देता हूँ, वो भी अपना बैंक खोल के बैठा होता है। ये ले लो 5 लाख रुपए। अच्छा, दवा खरीदनी है, खाद डालनी है, ये 10 लाख रुपए ले लो। वो वापस कुछ नहीं लेता, 10 लाख ही वापस लेता है, लेकिन कहता है फसल मेरे पास बेचनी पड़ेगी, कहीं और नहीं बेचनी तुमने। तो जो उसने बाउंड करके फायदा उठाया, उसकी बुनियाद क्या है? कर्जा। अगर कर्जा ना दिया होता तो वो किसान तो चौड़ा होके मार्केट में आता कि पहले मैं जरा देखूंगा रेट कौन अच्छा दे रहा है मुझे। अब वो बाउंड हो गया, ना उज्जत कर सकता है, ना इससे वो तकरार कर सकता है। सोचेगा चलो पैसे ही तो मिलने, अगले दफा पैसे नहीं देगा अगर मैंने कुछ किया तो। कर्जे की बुनियाद पर नफा दिया गया। किसान से जिसको बेनिफिट हासिल हुआ, कर्जे की बुनियाद पर हासिल हुआ। सूदी मामला ही। आगे चलते हैं, अब रिवर्स आते हैं। हम थे, कहां पर थे हम जनाब? सूद की 2 अक़साम। पहली किस्म कौन सी? कर्ज के बदले हासिल होने वाला सूद। इसकी गुफ्तगू कंप्लीट हो चुकी है। कर्ज से हासिल होने वाला सूद। दूसरी, मखसूस अशिया के तबादले पर हासिल होने वाला सूद। इसकी हमने 2 किस्म की थी। इसका नाम है रिबल फजल, जो भी हमने पढ़ना है, जो भी हमने जानना है। अब तक हमने जो सुना वो ये सुना कि कर्ज के बदले में कहां कहां नफा मिलता है और सूदी मामला है। अब जो दूसरी किस्म है, मखसूस अशिया के तबादले के बदले सूद का मिलना। ईद के मौके पर नए नोट आते हैं, बंदा जाता है दुकानदार के पास कि जनाब 20 रुपए वाले 100 नोट चाहिए, इसको 100 नोट की गड्डी चाहिए। क्या बोलते हैं लाहौर में उसको? तस्ती बोलते हैं, गड्डी बोलते हैं? गड्डी बोलते हैं। उसकी मालियत है 2000 रुपए की। उसकी मालियत कितनी है? लेकिन वो बिकती कितने की है? 2200, 2500।
یہ حلال بھی ہو سکتی ہے، حرام بھی. کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری والی قسم کے اندر تفصیل ہے. کیا ہے؟ تفصیل ہے. ابھی تک جو میں نے باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، میں سمجھتا ہوں مشکل باتیں نہیں تھیں. وہ باتیں تھیں جو آسان تھی. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو دوسری والی قسم ہے، میں اس کا فارمولہ آپ کو سکھا دوں کہ حلال کب ہوگی، حرام کب ہوگی. پہلے تو میں 2 مثالیں بیان کرتا ہوں. کسی دکاندار نے کہا کہ یہ اچھا ٹھیک ہے، یہ گڈی لے لو 20 والی اور 2200 روپے دے دو. اس نے جیب سے پیسے نکالے، اس کو دیے، گڈی لی، جیب میں رکھی، چلا گیا. یہ جائز ہے. کیا ہے؟ یہ جائز صورت. دوسری صورت کہ یہ دکاندار کے پاس آیا، ہاں بھی کتنے کی ہے؟ کہنے لگا کہ جی وہ 2500 کی ہے. اچھا ایسا ہے، ہفتے بعد پیسے بھجوا دیتا ہوں یا شام میں بھجوا دیتا ہوں. مارکیٹوں میں شام کہنا تو ادھار سمجھا نہیں جاتا نا. گڈی اٹھائی، چلا گیا. یہ سود ہے. فرق باریک ہے. یہ سود کیوں ہوا، یہ جائز کیوں ہوا، اس کا جو فارمولہ ہے وہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے تاکہ آپ بھول نہ جائیں. میری سوچ یہ ہے کہ معاشرہ اکائی سے بنتا ہے، اور یہ میری سوچ نہیں ہے، میں نے پیارے آقا علیہ السلام سے سیکھا ہے. پیارے آقا علیہ السلام دعا کرتے تھے، اے اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب فرما دے. فرد کے لیے دعا کرتے تھے نا، فرد کے لیے. ایک ایک بندے کو آپ قریب لاتے رہے، اسلام کے نور سے منور فرماتے رہے. آپ 150-200 جو افراد بیٹھے ہیں، اگر ان کو یہ مسئلے پتہ چل گئے، مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ میں نے ایک فرد کو نہیں سمجھایا، 3 نسلوں کو سمجھایا. آپ کے بیٹے بھی ہوں گے، پوتے بھی ہوں گے، یا کم از کم آپ کے دکان پر کام کرنے والے لوگ بھی ہوں گے. تو صرف آپ کو فائدہ نہیں پہنچا، آپ کے ذریعے 600 افراد کو فائدہ پہنچا. اور میں سوچوں کہ نہیں، پاکستان کا ہر آدمی یہ کام کرنا شروع کر دے. یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، عملی صورت نہیں ہو سکتی. علم اسی طرح پھیلتا ہے، اور یہی طریقہ ہمارے بزرگوں کا رہا ہے. اور معاشرے میں اس وقت تک بڑا بگاڑ نہیں آ سکتا جب تک غلطی کو غلطی کہنے والے موجود ہوں. اگر یہ عمل بھی ختم ہو جائے نا، لوگ کہیں گے غلطی تھوڑی ہے، صحیح ہے. علماء کی یہی ضرورت ہوتی ہے. علماء دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بعض کا مدنی چینل پہ کوئی مسئلہ بیان کرتا ہوں، یہ تو خیر ایسا ٹاپک ہے، اس میں آپ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے. میرے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ اتنا مشکل مسئلہ ہے، یعنی اس کا جو حکم ہے بڑا سخت ہے. لوگ بولیں گے کہ ہم کیسے عمل کریں، کوئی کاروبار بند کر دیں. لیکن میں اپنے تجربے کی بنیاد پر مطمئن ہوتا ہوں. مجھے پتا ہوتا ہے کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ ایک وہ ہوتا ہے جو فوری چھوڑ دیتا ہے، سنتا ہے فوری چھوڑ دیتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ غلطی ہے، اسے تو بچنا ہی پڑے گا. چھوڑنے کا سوچ لیتا ہے کہ میں چھوڑوں گا اس کو. معلوم ہوا تو اس نے یہ سوچا. ایک وہ ہوتا ہے جو تہیہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، نہیں میں نے نہیں چھوڑنا. یہ بھی ایک دن آتا ہے علماء کے پاس، بہت پریشانی آ رہی ہے، کاروبار بالکل بیٹھ چکا ہے، لگتا ہے جو نا میں جو یہ کام کرتا تھا یہ اسی کا نتیجہ ہے. آپ بتائیں یہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علم جو ہے اس کی برکتیں ہوتی ہیں، بے پناہ برکتیں ہوتی ہیں. علم کی اتنی اہمیت ہے کہ نفل نماز پڑھنے سے افضل علم سیکھنا. نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ
وہ بندے کو حرام سے بچاتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے نافرمان کو اللہ کا قرب مل سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں مل سکتا. فرما بردار کو قرب ملے گا. فرما بردار کب بنے گا بندہ؟ جب اس کو پتہ چلے گا یہ صحیح یہ غلط. ایک مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ نوٹوں میں یہ دو صورتیں پائی گئی، جائز ایک ناجائز. کیوں ایسا کیوں ہوا؟ یہ اگلے اسٹیپ میں سمجھا رہا ہوں. فی الحال کچھ مثالیں. آج کل ہماری مارکیٹوں میں کیا ہے کہ گورنمنٹ نے کیش پر ٹیکس لگا دیا. 1 لاکھ روپے پہ 600 روپے کٹیں گے. چیک آیا آپ کے پاس؟ تو یا ایک آدمی جا رہا ہے بینک میں، آپ سے ملاقات ہو گئی. ہاں بھی کہاں جا رہا ہوں؟ مجھے پیسے کیش کروانے. میرے پاس ہے نا کیش، مجھے 400 روپے دے دینا. تم نے بینک سے کاٹ دینے ہی دینے بینک کو. بھائی بینک کو جو دینے وہ بینک نے تو نہیں رکھنے نا، وہ تو گورنمنٹ ٹیکس لے گی. ٹیکس لینا گورنمنٹ کا جائز ہے. گورنمنٹ ٹیکس نہ لیں تو ہمارے سڑک کیسے بنے، پل کیسے بنے، بلدیہ کیسے چلے، فوج کو پیسہ کہاں سے ملے، پولیس کو کہاں سے ملے، اسکول میں ٹیچر کہاں سے آئے، جینا ہاسپٹل کہاں سے چلے، میو ہسپتال کہاں سے چلے. گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے تو غریبوں کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بہت سارے جو ہے وہ راستے میں موجود ہیں لوگ خیانت کرنے والے. اللہ تعالیٰ کے جواب دیں. ٹیکس ریاست کی ضرورت ہے. ہمیں بحیثیت تاجر پاکستان میں رہتے ہوئے اس بات کو سمجھنا ہوگا. یو کے میں رہتے ہوئے، امریکہ میں رہتے ہوئے سب سمجھتے ہیں. 40% تک ٹیکس دیتا ہے وہاں پر تاجر. لیکن اللہ کرے ہمارے ملک میں ایسا نظام قائم ہو کہ دیانت کی فضا ہے. ہمارا جو بھی پیسہ جہاں جاتا ہے وہ صحیح جگہ پر خرچ ہو، لوگوں کی جیبوں میں نہ آئے. تو بینک نے تو ٹیکس کاٹ کے گورنمنٹ کو دے دینے تھے، لیکن آپ نے کون سا ایگریمنٹ کیا؟ آپ نے پیسے کے بدلے پیسے کو بیچا ہے. 1 لاکھ روپے اس کو کیش دے کے 400 روپے زیادہ لیے. سود کی دوسری صورت ہے. ایک اور صورت، ایک چیک ایسا ہے کہ 15 دن بعد کا ہے، دے دیا جناب کسٹمر نے. 15 دن بعد کا چیک اس نے بھی لے لیا کہ چلو ٹھیک ہے ہماری ڈیل ہی جب 15 دن بعد کی ہوئی ہے لے لیتا ہوں. اب اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی اور مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے کا چیک ہے. اب وہ جاتا ہے مارکیٹ میں، یار یہ چیک ہے تم ایسا کرو 5000 روپے کاٹ لو، مجھے کم دے دو. یہ بھی وہی صورت ہے. پیسے کو پیسے کے بدلے بیچا گیا اور اس پر جو ہے اس کو نفع دیا گیا. یہ سود کی صورت ہے. ٹرک اڈوں پر کیا ہوتا ہے کہ ٹرک والوں کو چیک ملتے ہیں. ٹرک آیا جناب پشاور سے لاہور، سیب لے کر آیا. وہ آڑتی نے چیک دے دیا، یہ لو جی کرایہ آپ کا. اور وہ جو چیک ہے وہ 3 دن بعد کا ہے. اس ڈرائیور نے واپس بھی جانا ہے، پیٹرول بھی ڈلوانا ہے. وہ چیک کے چکر میں کہاں پڑے گا؟ تو یہاں اصل میں ظلم ہے. آپ نے اس کے ساتھ غلط کیا. جو آپ کو پتا ہے اس نے واپس جانا ہے، اس کو آپ آج کا چیک دیں یا اس کو کیش اماؤنٹ دیں یا اس کی کمپنی کو یہ کہیں کہ ہم آن لائن کروا دیتے ہیں، پہلے سے بتا دیں تاکہ وہ ڈرائیور کو خرچہ دے کر بھیجے. اب وہ چیک لے کے ٹرک اڈوں پر چھوٹے چھوٹے لوگ بینک رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، کیش رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس طرح کے چیک خرید رہے ہوتے ہیں. ان کی زبان میں بولتے ہیں بلٹی خریدنا. ٹھیک ہے، چیک لے لیا 50,000 روپے کا ہے، اس کو 1,000 روپے کم دے دیا. یہ بھی وہی صورت ہے. پیسے کے بدلے پیسہ بیچا گیا ہے اور ایک سودی معاملہ ہے. کاروباری دنیا کے اندر LC کھلوائی جاتی ہے. کسی نے جو ہے وہ مال بنوا کر بھیجا. آپ کے لاہور میں کیا پروڈکٹ تیار ہوتی ہے؟ کراچی میں تو ٹیکسٹائل جو ہے وہ چھایا ہوا ہے. یہاں کیا تیار ہوتی ہے جو باہر جاتی ہو؟ بہت ساری میرے علم میں بھی آ جائیں گے. اچھا، باہر جاتا ہے. اتنا تو مجھے پتا ہے کہ پاکستان سے جتنے بکرے امارات میں جاتے ہیں نا،
शायद और कोई चीज जाती हो। तो अब क्या हुआ कि कोई माल आपने भेजा, उस पार्टी ने बैंक गारंटी ली और आपके नाम एलसी खुलवा दी। एलसी में ताजिर मुतमईन हो जाता है, उसका पैसा डूबता नहीं। बैंक 90 दिन के बाद देने का पाबंद होता है। वो पार्टी अगर नहीं भी देगी तो बैंक उसको देता है। पहले जरा ये समझें कि बैंक क्यों देता है। पार्टी ने नहीं भी दी तो बैंक देगा। बैंक जो ये काम कर रहा है ये कोई नया काम नहीं है, ये हमारे फिक्र में लिखा हुआ है तरीका, पूरा चैप्टर है हवाले का कि एक आदमी जो है वो उसने पैसे देने हैं, वो जामिन लिया है और वो आकर कहे इसने अगर पैसा नहीं दिया तो मैं दूंगा, जायज़ है, पूरा तरीका लिखा हुआ है। तो बैंक उस पार्टी का, चाइना जो आपका माल जा रहा है या बाहर माल जा रहा है या यूके जा रहा है, वो पार्टी एलसी खुलवा देती है, बैंक कहता है ठीक है 90 दिन बाद पैसे ले लीजिएगा। अब अमाउंट बड़ी होती है, आपका पूरा कंटेनर गया होता है। पार्टी बैंक से डीलिंग करती है कि जनाब ऐसा करें कि मेरे ये 50 लाख रुपए आए हुए हैं, आप 1 लाख रुपया रख के 49 लाख में दे दें, 90 दिन बाद आने मेरे पैसे, या मैं आपसे कानूनी तौर पर 90 दिन बाद तकाजा कर सकता हूं, डील कर लेते हैं। क्या पाया गया? पैसे के बदले पैसे की डील पाई गई। जिस जमाने में डॉलर महंगा हो रहा था, एक्सपोर्टर जो है वो परेशान हो गए थे, तो एडवांस में डॉलर बुक होना शुरू हो गए, वो भी सूद की सूद थी। सोनार मार्केट के अंदर दो तरह के काम होते हैं। एक तो आम कस्टमर जेवरात बनवाता है, वो कैश पर काम करता है, पैसों पे करता है। उधार भी सोना उधार भी बेचना जायज़ है, सोना उधार बेचना भी जायज़ है। लेकिन एक काम हो रहा होता है दुकानदार का और कारखानेदार का, ये दोनों पैसों में मामला नहीं करते। टोटल 98% ये सोने के बदले काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर दुकानदार ने 100 ग्राम सोना दिया, किसको? कारखानेदार को, कि जेवर बना के दे दो। वो अगर पैसे ले ले, रुपया ले ले, तो ठीक है इतने जो है वो पैसे मैं लूंगा आपसे, तो जायज़ है। वो कहता ठीक है सोना तो मुझे दो और सोना ही लूंगा मैं आपसे। तो वापसी में वो क्या करता है कि 100 ग्राम के बजाय 90 ग्राम वापस करता है। ये सूदी सूरत है। क्यों का जवाब मैं दे रहा हूं। गंदम की मिसाल में दे चुका हूं कि किसी ने 50 मन गंदम ली और कहा कि 60 मन मुझसे ले लीजिएगा या 60 मन ले लो, हाथों हाथ ले लो, तो ये भी सूदी सूरत है। अब हमने जितनी गुफ्तगू की है आइए उस पर नजर जुड़ाते हैं। सूद की अक़साम, 2 अक़साम, कर्ज और उधार वाला सूद, मखसूस अशिया के तबादले वाला सूद। इसकी कितनी किस्में? कर्ज के बदले नकदी में नफा मिलता हो और कर्ज के बदले बेनिफिट मिलते हो। ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। सिर्फ 3 जुमले मुश्किल होंगे, फिर आसान है। तैयार है जनाब? दुरूद पाक पढ़ लीजिए। एक दफा और रिक्वेस्ट करता हूं, दुरूद पाक तो पढ़ ही लें। एक दफा अगर खड़े होकर बैठ जाएं थोड़ी सी तवानाई आ जाएगी। तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। मैंने अर्ज किया था कि मैं सुनाने नहीं पढ़ाने आया हूं।
सूद की दो किस्में हैं। अब थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़, एक रिबन नसिया, दूसरा रिबल फضل। कर्ज वाली सूरत रिबन नसिया की है और जो दूसरी सूरत है वो रिबल फضل की है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम की एक हदीस, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, उबादा बिन सामित रिवायत करते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़हबु बिज़्ज़हब, सोने के बदले सोना, वल फिद्दतु बिल फिद्दती, चांदी के बदले चांदी, वल बुर्रु बिल बुर्री, गंदम के बदले गंदम, व शईरु बिल शईर, जौ के बदले जौ, व तमरु बिल तमर, खजूर के बदले खजूर, वल मिल्हु बिल मिल्ही, नमक के बदले नमक, मसलन बिन मसलिन। जब भी ये मामला करना हो जिन्स एक ही होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए, तसावी होनी चाहिए, सवान भी सवाइन, बराबर होनी चाहिए, यदन भी यदिन, हाथों हाथ होनी चाहिए, उधार नहीं होनी चाहिए। जब ये असनाफ बदल जाएं, फबियू के फशे तुम, फिर जिस तरह चाहो बेचो। एक सूद वो है जो कुरान ने हराम किया, एक सूद वो जो हदीस ने हराम किया। ये मैंने वो हदीस बयान की है जिसने कुछ चीज़ों के तबादले में सूद बयान किया है। 6 चीज़ें बयान की गई यहाँ पर, सोना, चांदी, गंदम, जौ, खजूर और नमक। अगर सोने के बदले सोना है तो कम ज़्यादा नहीं हो सकता, उधार भी नहीं हो सकता। ये जो 6 चीज़ें हैं ये वो हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दी। अब उलमा ने इन 6 चीज़ों से एक उसूल निकाला और दुनिया भर में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उसके अंदर दाखिल कर दी। उस उसूल का नाम है जिन्स और कदर। अब मैंने आपसे कहा था एक फार्मूला आपको समझाना है, अब मैं वो समझाने लगा हूं। कोई एक साहब खड़े होंगे, कोई एक साहब खड़े होंगे जी। ये बताएं, एक आदमी फ्रूट खरीदता है, पैसे दिए, फ्रूट लिया, तो क्या हुआ? पैसे एक अलग चीज है, फ्रूट एक अलग चीज है, दोनों चीजें एक तो नहीं है ना। कोई ये कहेगा कि फ्रूट और पैसे एक ही जिन्स है? अलग अलग चीजें। तो जिससे मुराद ये है कि दोनों एक ही चीज जहां हो, ऐसी खरीदो फरोख्त हो बाटर सिस्टम पर कि यहां से भी वही चीज है, वहां से भी वही चीज है। इसकी एक मिसाल क्या, खजूर, वहां से भी खजूर, यहां से भी सेब, वहां से भी सेब। आप कहेंगे ऐसा कहां होता है, ऐसा कौन करता है? तशरीफ रखिए। तो ऐसा होता है। अगर नहीं भी कोई करता हो तो मसला तो समझ लें, वो जो नए नोट और पुराने नोट वाला मसला है वो यहीं से हल होना है। इसी फार्मूले से आपको पता चलना है जायज़ सूरत कौन सी है, नाजायज़ सूरत कौन सी है। वहां क्या सूरत थी, एक तरफ से नोट, दूसरी तरफ से भी नोट, जिन्स और जिन्स, ठीक है जी। ऐसा तबादला जिसमें दोनों चीजें एक ही चीज हों। गाय और बकरी एक है, अलग है? जानवर जरूर है लेकिन रेट थोड़ी दोनों का एक है। बकरी अलग जिन्स है, गाय अलग जिन्स है। बकरी और गाय का तबादला अगर होगा, एक जिन्स का तबादला होगा या अलग जिन्स का होगा? अलग जिन्स का होगा। तो एक तो चीज इसको समझने के लिए जरूरी है कि जिन्स को सामने रखा जाए कि कहीं जिन्स एक है कि अलग है। एक पे और हुक्म होगा, अलग पे और हुक्म होगा। प्लस करना है कदर को। कदर का अंग्रेजी में तर्जुमा है मेजरमेंट। क्या तर्जुमा है? और उर्दू में कहते हैं पैमाना। जब भी आप कोई चीज लेते हैं और देते हैं तो दो तरीके से डील होती है। या तो लाट के हिसाब से होती है। किसके हिसाब से होती है? वहां मेजरमेंट कोई वैल्यू नहीं रखती, भाई लाट पूरी खरीदनी आपने। दूसरी किस हिसाब से होती है? तोल कर होती है। तराजू तो आज की याद है ना, पुराने जमाने में क्या होता था? माप या नाप? माप कर। पहले जमाने में क्या होता था? आप बड़े बूढ़ों से पूछिएगा, गांव के अंदर कोई बंदा कोई चीज बेचने आता था, गांव देहातों में
हाँ भी कपड़े वाला आया है या कोई कुल्फी वाला आया है, पैसे नहीं है, दाने लेने देना उसने, तो एक हांडी में ते होता जी इतने दाने दे दो। ये मैंने खुद अपनी आंखों से गांव देहात में देखा है। तराजू आने से पहले माप कर चीजें दी जाती थी। तो दूसरे तरीकों को क्या कहेंगे? पहला तरीका तौल, दूसरा तरीका क्या कहलाएगा? उर्दू में माप, अरबी में केल। अरबी में केल। यहां एक छोटी सी पेचीदगी है। हमारे लेन देन में एक तीसरी चीज भी होती है। मदीना शरीफ कौन कौन गए? केले गिन के मिलते हैं या तौल के मिलते हैं? जी, केले तौल के मिलते हैं। हमारे यहां किससे मिलते हैं? गिन के मिलते हैं। तो एक तीसरी चीज भी होती है, बहुत सारे आइटम क्या होते हैं? मोबाइल का भी सुना है कि तौल के बिकता हो, पर पीस बिकता है। सूद की दूसरी किस्म हम समझ रहे हैं। बस ये बात समझ जाए तो अगली बात समझ के कहेंगे मौलाना साहब ये शरीयत का क्या उसूल है? जो सूद की दूसरी किस्म है उसमें इसका एतबार नहीं किया गया, इसका एतबार नहीं किया गया। नोट क्या है? हैं? अददी है ना, गिन के बिकते हैं। तो वो जो मैंने कहा था ना कि अगर ये पैसे दे देता है 2200 रुपये और 2000 रुपये गड्डी ले लेता है नगद, तो ये जायज़ है। वो इसलिए बयान किया कि नोट के बदले नोट जिन्स एक पाई गई या नहीं पाई गई, लेकिन ये पाई गई सूरत, ये पाई गई। शरीयत ने इस किस्म में सूद पाए जाने के लिए दो चीजें लाजिम की हैं। अगर ये दोनों एक साथ पाए जाएंगे, क्या? नगद इजाफा भी हराम और उधार भी हराम। क्या? जैसे किसी ने गंदुम बेची, गंदुम के बदले जिन्स पाई गई भी जनाब, जिन्स एक ही है। गंदुम तौल के बिकेगी या फिर वजन से बिकेगी? ऐसा ही है ना, इसमें तो नहीं आ रही ना। अब ये जरूरी है कि अगर कहीं ऐसा सौदा होता है तो कमी बेशी नहीं हो सकती। कमी बेशी हुई सूद हो जाएगा, उधार हुआ सूद हो जाएगा। किसी ने एक बकरी बेची 2 बकरियों के बदले, दोनों की जिन्स एक है, ये पाया गया, ये पाया जा रहा है ना, ये नहीं पाया गया। नकद बेच दे, ये एक बकरी ले लो, 2 बकरी दे दो, चला जाए। उधार करेगा तो आराम हो जाएगा। इस कायदे की 4 सूरतें हैं। कितनी सूरतें हैं? हाँ, अब आप अपनी बुक खोलें। पहली सूरत, जिन्स एक हो, कदर एक हो। 29 जिन्स एक हो और कदर भी एक हो। हुक्म बयान नहीं कर रहे अभी हम हुक्म बयान नहीं कर रहे, इसका हुक्म जायज है नाजायज है। ये अर्ज कर रहा हूं कि ये मसला, इस मसले की कोई 5वीं सूरत नहीं है कि आप परेशान हो जाएंगे। इतनी मुश्किल चीज कौन समझेगा? सिर्फ 4 चीजें समझेंगे बस। जिन्स एक हो, कदर भी एक हो। तस्वीर किस चीज की बनी हुई है? गंदुम के बदले गंदुम। दूसरी सूरत, जिन्स एक हो, कदर मुख्तलिफ हो। घोड़े के बदले किसी ने घोड़ा बेचा, यार तो आपका घोड़ा बड़ा अच्छा है, मेरे घोड़े से तबादला कर लो। जिन्स एक है, इसकी जो वो है कदर पाई जाती है इसमें। जिंदा घोड़ा तो कोई नहीं बिकता तोल कर। तीसरी सूरत, जिन्स मुख्तलिफ हो, बाटर सिस्टम। किसी ने चीनी खरीदी गंदुम देकर, दोनों की जिन्स अलग अलग है ना, लेकिन दोनों का वजन एक है, केल पाया गया। चौथी सूरत, जिन्स भी अलग हो, कदर भी अलग हो। जो आप आमतौर पर हम खरीद फरोख्त करते हैं यही होता है। पैसे देते हैं, मोबाइल खरीद लेते हैं, पैसे देते हैं, सोना खरीद लेते हैं,
पैसे देते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं। ये 4 सूरतें बनी, इन 4 सूरतों में से कौन सी जायज़ कौन सी नाजायज़? अगले पेज पर आते हैं। जब जिन्स भी एक हो और कदर भी एक हो, आप ना पेज नंबर 29 पर रहे, अगला पेज यहां से देख लेंगे। जिन्स भी एक और तस्वीर किस चीज की है? ठीक है। अब इसका हुक्म क्या है? उधार करेंगे हराम हो जाएगा। कहा ये गंदम ले जाओ, अपनी गंदम कल दे देना। उधार करेंगे हराम हो जाएगा। अच्छा, गांव जातों में जो होता है ना, आटा खत्म हो गया, पड़ोसी से ले आओ, ये कर्जा है। क्या है ये जायज है। खरीदो फरोख्त हो रही है तो वो नाजायज होगा। भाई पहले जमाने में सोने चांदी की अशरफियां होती थी ना, हैं? नोट तो नहीं थे, तो लोग कर्जा किस चीज में लेते थे? अशरफियों में लेते थे। तो कर्जा मैं समझा चुका हूं, ऐसी चीज नहीं होती इसको संभाल कर रखा जाए। कर्जा लिया जाता है जरूरत पूरी करने के लिए, तो गंदम में कर्जे में ली जा सकती है। ये खरीदो फरोख्त की बात हो रही है। उधार हुआ तो सूद, गंदम 10 मन, दूसरी तरफ से 11 मन, क्या हुआ? कमी बेशी, ये भी सूद हो जाएगा। आगे चले। जिन्स एक हो, कदर मुख्तलिफ हो। जिन्स एक हो, जैसा कि नोट के बदले नोट बेचना, तो क्या हुक्म होगा? उधार हराम है, हाथों हाथ जायज। नोट में कदर पाया गया? नहीं पाया गया ना, क्योंकि ये तराजू केल वाला नहीं है। हाथों हाथ, अगर एक तरफ से ज्यादा एक तरफ से कम है, नगद अदायगी होगी 2 तरफा, तो ये जायज है। ये घोड़ा देख रहे हैं, ठीक है? किसने कहा कि ये 2 घोड़े के बदले 1 घोड़ा दिया, फौरन सौदा हो जाए, हाथों हाथ जायज है। आगे चलते। जिस मुख्तलिफ हो, कदर एक हो। ये देखें मिसाल, गंदम और चावल दोनों एक ही माप से बिकते हैं ना, तौल कर बिकते हैं, लेकिन जिनसे अलग है। एक ने कहा कि जी 1 मन गंदम के बदले मुझे 5 मन जो है वो चावल दे दो। चूंकि इसके अंदर ये गलती ज्यादा होती है हमारे माशरे में, पहली बार इसमें तो नहीं पाई जाती, ये ज्यादा पाई जाती है। चूंकि इसके अंदर जिन्स तो नहीं पाई जा रही, लेकिन कदर एक पाई जा रही है, दोनों का तोल एक है। हाथों हाथ कर ले, नगद नगद। उधार करेगा तो हराम हो जाएगा। आगे चले। चौथी किस्म, जिन्स भी अलग, कदर भी अलग। हदीस पाक में फरमाया गया, फबीउ के फशेतुम, जैसे चाहते हो बेचो। मोबाइल सोना, पैसा सोना, पैसा कोई और चीज। जी सेकंड लास्ट स्लाइड, खुलासा निकालते हैं। आज हमने क्या सीखा? आज हमने सूद की 2 अकसाम। पहली किस्म रिबन नसिया, कर्ज के बदले या उधार की बात सूरतों के बदले नफा दिया जाता है, ठीक। दूसरी रिबल फजल, कुछ अशिया के बाम तबादले पर सूद पाया जाता है। और जब ये पता चलेगा जिन्स और कदर का मामला क्या है, हम फार्मूले को समझ जाएंगे। एक बात मेरी तवज्जो सुने, मेरी तो तवज्जो करें, फार्मूला समझना असल नहीं है। असल ये है कि आप एक काम कर रहे हैं, आपको पता चले कि ये हलाल है या हराम, काफी है। तो मैंने यूँ बयान कर दिया कि इसके बयान करने से हो सकता है आपके लिए थोड़ा मसला जानना और आसान हो जाए। ये बात अगर समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, इसको माइनस कर दें, क्योंकि इस तरह का मामला कम होता है, गांव जातों में ज्यादा होता है, शहरी जिंदगी में कम होता है। आगे, ये बड़ा अहम नोट है, ये बड़ा अहम नोट है कि तो सूद की 2 किस्में, एक तीसरी किस्म भी है जो मैं आज नहीं सिखा रहा। दर्जनों किस्म की चीज पाए जाते हैं इसमें, दर्जनों किस्म की। ये मत समझिएगा कि हमने सूद को समझ लिया है। सूद की मोटी मोटी 2 किस्में समझ ली हैं, तीसरी किस्म बड़ी बारीक है, उसका समझना भी बाकी है। आगे चलते हैं। सूद ले लिया हो तो क्या किया जाए?
بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا, ہماری تو سیلری جو ہے وہ آتی رہی اس کے اندر سیونگ اکاؤنٹ کے اندر. یا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں احساس بیدار ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم یہ اکاؤنٹ ختم کریں گے. پوچھتے ہیں اب جو رقم آ گئی اس کا کیا کریں؟ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ ناپاک رقم ہے, حرام کی رقم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں مسجد کے باتھ روم میں لگا دو. اللہ کے بندو, مسجد کے باتھ روم رہنا بھی ثواب کا کام ہے, وہ کیا ناجائز کام ہے؟ مسجد کے باتھ روم رہنا بھی ثواب کا کام ہے, وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے, وہاں نہیں لگ سکتا. بغیر ثواب کی نیت کے یہ نیت کرنی ہے, اے مالک میں توبہ کرتا ہوں, یہ رقم میری غلطی سے آ گئی, میں اب اس سے نجات پا رہا ہوں. یہ نہیں کہیں گے کہ جناب سیٹھ صاحب نے رکھوایا ہوا 1 کروڑ روپیہ اور یہاں بنے ہوئے جناب کیا بنے ہوئے ہیں, سخی بنے ہوئے ہیں, غریبوں کو بانٹ رہے ہیں. پیسہ سود کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حرام مال پیش کر کے ثواب چاہتے ہیں, کیسے ممکن ہے؟ اس سے خلاصی حاصل کرنی ہے, ثواب کی نیت نہیں کرنی. جو بھی مستحق زکوٰۃ ہو اس کو دے دے, یہ اس کی خلاصے کا طریقہ ہے. خلاصی سمجھ لی جناب, خلاصہ آپ پہلے سمجھ چکے ہیں, خلاصہ بھی سمجھ لیا, خلاصے بھی سمجھ لی. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے تو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں بہت درد دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں, ہمارے ذہنوں میں کوئی مائنس بات پیدا نہ ہو. یہ شیطان کا ایک حملہ ہوتا ہے کہ نہیں مولوی صاحب نے یہ کیا بیان کر دیا, یا وہ بات بڑی مشکل بیان کیا, کچھ سمجھ ہی نہیں آئی. آپ اگر یہ کہیں گے کچھ سمجھ نہیں آئی, یہ ایک حقیقت ہے. گلاس میں آدھا پانی ہے اور آدھا گلاس خالی ہے, یہ 2 الگ الگ جملے ہیں. اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں وہاں شریک ہوا, میں نے 4 باتیں سیکھی ہیں, باتیں تو 20 سکھائی گئی تھی, میں 4 باتیں سیکھ کے آیا ہوں, تو یہ وہ انداز ہوگا جو آپ کی طبیعت پر اچھے اثر ڈالے گا. درود پاک پڑھ لیجیے. ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے علماء کرام ہیں, ان کو بطور خاص میں نے یوں بلوایا کہ مفتی ساجد صاحب اشرا کے دارالفتہ میں ہوتے ہیں. مائک دیں بھی, اشرا کا دارالفتہ کہاں ہے؟ اشرا دارالفتہ اہل سنت یہ اشرا میں گولڈ مارکیٹ ہے, تو وہاں پہ لطیف پلازا کے 1st فلور پر اشرا دارالفتہ اہل سنت قائم ہے. مفتی انس صاحب داتا سرکار کے قدمین شریفین کی جانب جو پہلی گلی آتی ہے جوس وال, اس جوس کارنر والی گلی میں دعوت اسلامی کی بلڈنگ ہے. مکتبۃ المدینہ کے 1st فلور کے اوپر دارالفتہ اہل سنت ہے. صبح 9 سے شام 5 بجے تک اس کی ٹائمنگ ہے. دارالفتہ میں یہ حضرات موجود ہوتے ہیں, آپ کا استقبال کریں گے, آپ کبھی آئیں گے. دارالفتہ میں مسئلے پوچھنے کی کوئی پیسہ نہیں ہے. آپ کہیں گے لکھ کے دے دیں, لکھ کے دیں گے, لکھنے میں 2-3 دن لیں گے آپ سے, لیکن یہ ہوگا کہ کبھی بھی آپ چلے جاتے ہیں. اوقات کار کیا ہے؟ صبح 9 سے شام 5 بجے تک. آپ کے یہاں؟ ہمارے ہاں 11 بجے سے لے کر 5 بجے تک ٹائمنگ ہے. یعنی جس طرح ایک گلی محلے میں کلینک کھلا ہوتا ہے نا, تو بندہ بیمار ہے ڈاکٹر کے پاس جائے گا, تو یہ دارالفتہ اور مسائل پوچھنے کی جگہ اس سے زیادہ ہمارے لیے اہم ہے. یہ موجود ہیں, آپ حضرات استفادہ کریں. سنڈے والے دن چھٹی ہوتی ہے, جمعے کے دن کھلا ہوتا ہے. آپ کے یہاں جمعے کو کھلا. کوشچن آنسر. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پرائیویٹ کمپنیز میں پروویڈنٹ فنڈ ایک ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ 8%, 5%, مطلب 8% ہماری سیلری سے کاٹا جاتا ہے اور 8% ایکسٹرا کمپنی ڈالتی ہے اور سال کے بعد وہ ملتا ہے. تو جو ایکسٹرا کمپنی ڈالتی ہے کیا وہ سود میں ہے کہ نہیں ناجائز ہے؟ جو کمپنی ڈالتی ہے وہ آپ کے ایگریمنٹ کا حصہ ہوتا ہے. یعنی آپ کو سیلری دے دی مثال کے طور پر 30,000 روپے کیش آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی, اور 8% وہ آپ کو الگ سے جمع کر رہی ہے. آپ کے ایگریمنٹ میں ہوتا ہے کمپنی یہ کرے گی, وہ اجرت کا حصہ ہے. جو پیسے پروویڈنٹ فنڈ میں کمپنی ڈالتی ہے وہ حلال ہے, وہ آپ کے ہیں. لیکن وہ جو پیسے بینک میں اضافی جمع ہو جاتے ہیں وہ حلال نہیں ہے. مثال کے طور پر کمپنی نے اور آپ
आपके तनख्वाह से कट के जो भी जमा हुआ वो जमा हुआ 5 लाख रुपए, 2 साल रहने पे 20,000 करोड़ जमा हो गए। जो बैंक का इजाफा होगा वो सूद होगा। एक दूसरा सवाल, कंपनीज में जो मतलब वो जॉब ऑफर लेटर होता है उसमें ये होता है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी भी दी जाती है और बाद में डॉक्यूमेंट्स भी लेते हैं, आईडी कार्ड वगैरह, वो खुद ही प्रोसीजर करवाते हैं। तो उस एग्रीमेंट पे जो साइन करता है बंदा, क्या साइन जो करता है उसको बेनिफिट मिलते हैं, नहीं करता उसको नहीं मिलते। ठीक है, जबर नहीं है, इकराह नहीं है, आपने करना ही करना है। जहाँ जबर है, मिसाल के तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा आपको, आप ये काम करवाएं, वो अलग सूरत है। जहाँ आप ऑप्शनल है तो वहाँ कैसे गुंजाइश होगी। नेक्स्ट प्लीज। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो खलासी हासिल करने के लिए रकम अदा की जा रही है, जिसको अदा की जा रही है, अगर वो पूछ ले कि ये कौन से पैसे हैं, तो फिर क्या उसे फरमाए कि ये कौन से पैसे हैं? उसको गिफ्ट कह सकते हैं, तोहफा कह सकते हैं, कि उसको एहसास ना हो। ये ज़कात के बारे में फुक़हा ने लिखा है कि अगर आप ज़कात कहेंगे उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू होगी, ऐसे मौके पर आप तोहफा, गिफ्ट, ईदी कह सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और है, और इसमें यह भी है, गुनाह का इजहार करना भी गुनाह है। एक तो उसकी इज़्ज़त नफ्स है, दूसरा आपके लिए जाहिर करना ये जाहिर जायज़ नहीं है कि मैंने ऐसा किया था। जाहिर करने के मौके होते हैं, आप किसी आलिम के पास गए कि भाई मैंने इस तरह का काम कर लिया है, वो एक मौका है। उलमा ने लिखा किसी की नमाज कज़ा हो गई तो छुप के पढ़े, या ऐसी नमाजों के बाद पढ़े जिसके बाद नफिल होते हैं। जैसे ज़ोर के बाद नफिल होते हैं, कुछ समझेगा हो सकता है नफिल पढ़ रहा है, उसने फजर की कज़ा पढ़नी थी, लेकिन असर के बाद नफिल नहीं होते, तो असर के बाद पढ़ना जायज़ नहीं होगा, इसके लिए कज़ा नमाज घर में पढ़ सकता है। क्रेडिट कार्ड्स की बात हो रही थी, थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा था कि जो अगर पेमेंट हम डिले करते हैं, ओवरड्यू हो जाती है, उस पर तो मार्कअप पड़ गया, वो ठीक है। अगर हम ड्यूरिंग प्रोसेस पे कर देते हैं और उसके इंटरेस्ट भी नहीं बढ़ता जिन चीज़ों पे, जैसे ग्रोसरीज वगैरह हैं। एक बात समझने की कोशिश करें, आपका बैंक में अकाउंट ना हो या आपकी माली हालत ऐसी ना हो, नौकरी पेशा ना हो, आप बैंक क्रेडिट कार्ड देगा? नहीं देगा। नहीं देगा, ठीक है ना? तो आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल करें। किसी टाइम होता है डेबिट कार्ड की पोजीशन नहीं होती है, क्रेडिट कार्ड को उस टाइम में पे तो कर सकते हैं ना, इन टाइम में अगर फिर उस पर 2.5 या समथिंग अगर ऐड भी नहीं होता, जैसे मेडिसिन है, पेट्रोलिंग है। बैंकों की सोच है यहूदी सोच, करोड़ों के इश्तेहार छापते हैं, क्रेडिट कार्ड लीजिए, क्रेडिट कार्ड लीजिए, 40 दिन में पेमेंट हो जाती है, बैंक को कुछ मिलेगा? बैंक को कुछ मिलेगा? वो सोचते हैं दाना डालो कभी तो बंदा फंसेगा। तो मसला ये है कि हमारी कौम को 2 चीज़ों से इस वक्त खतरा है आज की तारीख। एक उन ड्रामों से जो टीवी पर ड्रामे चलते हैं, फिल्मी ड्रामे, जिसके अंदर अब करैक्टर लाकर, एक नजरियाती सोच लाकर इस्लाम पर हमले हो रहे हैं। एक तो खतरा इस वक्त उस नजरियाती चीज से कि जो हमारी कौम में उतारी गई है, लो जी इसके बहाने उनके नजरियात बदलें, चेंज हों, इस्लाम से मुतनफ़िर हों, दूर हों। दूसरा खतरा है उन कंपनियों से जो नाजायज़ काम के लिए भी ऐसी मशहूरी करती हैं कि बिल्कुल शीशे में उतार लेती हैं। बंदा बोलता है यार कितने फ़ायदे हैं, वाह स्कीम आ रही है, आइंदा जनाब जिसके पास फला बैंक का कार्ड होगा उसको इतने फीसद आए, जिसने नहीं वो कार्ड रखा तो वो भी रख लेता है। होता क्या है, उसने बेचारे ने खर्च करने थे 1000 रुपये, उसके बजाय वो 5000 रुपये खर्च कर लेता है और वो चीज़ भी महंगी मिलती है उसे। कंपनियों से बचना होगा। हम आज तक कार्डलेस थे, कम से कम डेबिट कार्ड हो जाए, तो कार्डलेस बनना पड़ेगा। यूँ हजूर बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि दुकान के ऊपर कुछ लोग आते हैं, जैसे कि पार्टी की नुमा, वो ये कहते हैं कि ये मेरा माल ले लो और इसको सेल कर देना, ठीक है, और इसके पैसे तय कर लो आप कि मुझसे इतनी उजरत लोगे। मसलन एक प्राइस बॉन्ड ही है, इसके ऊपर 20 रुपये कमीशन लोगे, ठीक है, वो तो उसने तय कर लिया और ये तय नहीं किया कि माल बच गया तो वो वापस ले गए या दुकानदार ले गए। इसके लिए शरीयत क्या होगा मसला? देखिए तिजारत है या कमीशन है, फ़र्क इसी से होगा ना। मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी मिसाल समझाता हूँ।
किस ज़माने में थर्मास में लोग कुल्फी बेचते थे? देखा था किसी ने? एक आदमी कहता है ये कुल्फी इतने की बेची, जितने की चाय मर्जी बेचो। एक आदमी कहता है इतने की बेचनी है, इतना कमीशन मिलेगा। ज़ाया हो गई, गल गई, उसकी होगी। तो देखा जाता है कि खरीदारी हुई है, जैसे फ्लैट है, प्रॉपर्टी है। वो कहता है जी मेरा माल है, आप बिकवा दो, इतने पैसे दूंगा। वो कोशिश करता है, 6 महीने हो जाते हैं, नहीं बिकते, वापस कर देता है। तो ये खरीदारी नहीं है ना। देखा जाएगा कमीशन है मुआहदा या तिजारत है। तिजारत है तो वापसी नहीं है, कमीशन है तो चीज़ मालिक की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने आखिरी जो स्लाइड चलाई थी कि जिसने वसूल कर लिया है तो वो उसकी तलाफी करे, तो जिसने दिया हुआ है यानी जिसने कर्ज लिया था और सूद देता रहा है उसके ऊपर, उसकी भी कोई तलाफी है? और दूसरा बस इस बारे में थोड़ा बता दो। इसकी तलाफी सिर्फ तौबा है कि इसने सूद दिया किसी को, पैसे कर्जे में लिए थे, सिर्फ तौबा है। बाद लोग समझते हैं वो जो कर्जा था वो भी हराम हो गया, वो नहीं है। उस कर्जे से अगर कारोबार किया वो हलाल है, जो इसने दिया है वो सूद है। जी माशाल्लाह, आपने ये कोर्स करवाया, तो ये कोर्स करने के बाद इस चीज़ की हमें इजाज़त है कि लोग मसले पूछें सूद के और हम बताएं? लिमिट होती है, खैर बात है, ये हमने अपने ज़ात के लिए किया है और ऐसा कोई करेगा भी नहीं। होता ये है कि जो चीज़ आपने दूसरे को बयान करनी है थोड़ा सा संभल के, बहुत सारी बातें आप गेट से निकलेंगे जहन से निकल जाएंगी, इसलिए अर्ज़ किया है कि थोड़ा सा समझ के कि क्या बयान करना है, कितना बयान करना है। नेक्स्ट जी, ये जो मकानात प्रॉपर्टी के ऊपर एडवांस लेते हैं किराएदारों से, इससे जो फ़वायद हासिल करते हैं वो क्या सूद में आते हैं या आगे? सूद, मैंने अर्ज़ किया ना कि अगर तो ज़्यादा पैसे दिए एडवांस में और किराया कम किया है, किराया माफ़ कर दिया है, तो ये सूदी फ़वायद दिए। नहीं, मेरा मकसद है अगर किराए पे मकान दिया है, उसका 2 माह या 3 माह का एडवांस लिया है उससे, इस सूरत में कि वो मकान छोड़ने से पहले अगर वाजबात क्लियर नहीं करता, बिल वगैरह या जितना मार्केट में राइज है, हर मार्केट का अलग हिसाब होता है ना। छोटी मार्केट है उसमें कम होंगे, बड़ी मार्केट में ज़्यादा होंगे। मार्केट में इतना राइज है उतना रखना ठीक है। ठीक है, मतलब उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जाती इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्रेडिट कार्ड के हवाले से था कि अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड इसलिए यूज़ कर रहा है कि वो हार्ड कैश कैरी नहीं करना चाहता, तो जैसे इस तरह में हालात हैं मुल्क के, तो वो उसको अवॉइड करने के लिए सर्कमस्टांसेस कि वो यूज़ करता है सिर्फ क्रेडिट कार्ड के, हार्ड कैश कैरी ना हो, सेफ रहे उसकी चीज़, तो इस सेंस में अगर वो यूज़ करता है तो प्रॉब्लमेटिकली है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात पर मुस्कुराएंगे, नाराज़ नहीं होंगे। मैं उम्मीद रखूँ ना। कोई 15-20 दिन पहले साहब आए थे, यही बात उन्होंने की, ग्रॉसरी खरीदनी होती है, ये मसला वो मसला। मैं कहा यार ग्रॉसरी कितनी खरीदनी होती है? 50,000 की खरीदनी होती है। 5-7 हज़ार रुपये का आप सामान खरीद लोगे, 10 का खरीद लोगे, 15 खरीद लोगे। आपके पास वो 70,000 वाला मोबाइल है, वो कहाँ छोड़ के जाओगे? 70,000 वाला मोबाइल तो साथ में है, और 10,000 रुपये के लिए आप बोले कार्ड मजबूरी है। तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। हज़रत, हमारा काम आजमबाद मार्केट में है, तो फ़र्ज़ किया एक एम्ब्रॉयडरी वाला, हम उसके पेमेंट दे रहे हैं तकरीबन 750 रुपये पर सूट। उसको कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है, उसको तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए उसको एडवांस की सूरत में चाहिए। वो हमसे कहता है कि आप ना मुझसे थोड़ा सा यानी कि रेट कम करवा लें, तो आप मुझे एडवांस की सूरत में आप मुझे 200-300-400 सूटों की पेमेंट यकमुश्त अदा कर दें। तो इस सूरत में ये काम करना कैसा? माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। तशरीफ रखिए। आप उससे सूट खरीदते? जी, सूट खरीदते हैं उससे? नहीं, एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं ना। सूट आपके होते हैं? हाँ जी, कपड़ा हमारा होता है, वो मजदूरी लेता है हमसे एम्ब्रॉयडरी करने की। मजदूरी लेता है? हाँ जी। अच्छा। तो मिसाल है कि हम 750 में उससे बनवा रहे हैं। हाँ। उसको ऐसी कोई ज़रूरत आन पड़ती है, वो कहता है जी मुझे आप ना तकरीबन 1.5-2 लाख का इंतजाम कर दें, तो अब जो बना के देगा उसके पैसे कम लेगा। हाँ जी, ये सूद है, ये सूद है। अच्छा, उसके पैसे कम क्यों हुए? कर्जे की वजह से हुए। ये जायज़ नहीं, ये जायज़ नहीं है। ठीक है, पहले आप बता चुके हैं, लेकिन एक भाई पूछना चाह रहे हैं
ذرا دوبارہ دہرا دیجیے گا. جو سیکیورٹی لی جاتی ہے ایڈوانس کی شکل میں گھر کی یا شاپ کی، کرایہ بھی آ رہا ہے، کرایہ بھی طے ہے، لیکن جو سیکیورٹی ہے کیا اس کو یوز کر سکتے ہیں؟ میں نے جو پہلی چیز سمجھائی نا، قرض، امانت، انویسٹ. قرض ہوتا ہی استعمال کرنے کے لیے، اور اس رقم کو بھی میں نے عرض کیا تھی قرض ہے، اور قرض استعمال کرنے کے لیے ہوتی ہے. شکریہ. اب جو ہے وہ یعقوب بھائی ملفوظات ارشاد فرمائیں گے. ماشاء اللہ عز و جل، ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. سوال علم کی چابی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور بدقسمتی سے جو دنیا بھر میں آج مسلمان تباہی کا شکار ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو دین کے، شریعت کے اصول ہیں، ان کو چھوڑ کر کسی معاشرے کے اصول اپنا لیے. جب مسلمان ٹریک سے ہٹے ہیں پھر تباہی کا شکار ہو گئے، نظام بدل گئے سارے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نظام دیا وہ یونیورسل ہے، پوری دنیا کے لیے. مثال کے طور پر ایک نظام ہے ہمارے پاس کہ جو اپنے ماں باپ کو رحمت بری نگاہ سے دیکھے اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا. اب وہ والد چاہے انگریز ہے، والد چاہے پٹھان ہے، والد چاہے چائنا میں ہے، والد چاہے انگلستان میں چاہے ہندوستان میں، اگر وہ مسلمان ہے، بیٹا مسلمان ہے، محبت بری نگاہ سے دیکھے گا اسے مقبول حج کا ثواب ملے گا. انگلستان والا، انگلینڈ والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے ملک میں رواج ہے کہ اس کو اولڈ ہاؤس میں جا کے جمع کرانا ہے. ابا جی بوڑھے ہو جائے تو ان کو دھکا دے رہا ہے، چلو جی ابا جی بکار ہوگا تسی. یہ نہیں ہو سکتا. ہم نے کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے کہ اب انگلینڈ گئے تو وہاں دیکھا کہ یار ابا جی نے جو دینا تھا وہ تو دے دیا، ہمیں مکان بھی لے دیا، جوان بھی کر دیا، پڑھا بھی دیا، لکھا بھی دیا. اب بوڑھے باپ پہ خرچ کرنے کی ضرورت کیا؟ انگلینڈ کا رواج بڑا اچھا ہے، ابا جی کو بوڑھے اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ. ان کو ابا جی ہم انگلینڈ میں ہیں، دیکھیں یہاں جہاں دیس ویسا دیس ویسا بیس، تو یہاں رہنا ہے نا، تو یہاں رواج یہ ہے کہ بوڑھوں کو نا جمع کراتے ہیں اولڈ ہاؤس میں جا کر. وہ چاہے سور کھائیں چاہے شراب پئیں، جو کھانا دیں ان کی مرضی، جو کریں. ابا جی آپ کو میں فکر نہ کریں، میں ملنے آتا رہوں، آپ چلے جائیں ادھر. اب بتائیے کیا یہ انسانیت ہے؟ ہم نے جدھر فائدہ نظر آیا ہے نا، ہمیں ہمارا فائدہ، ہم نے اس پہ ہاتھ رکھ دیا کہ یہ نظام صحیح ہے. اور بعد میں جب اس نے شاٹ ماری، کرنٹ مارا نا اس نے زور سے، پھر ہم چیختے اور چلاتے ہیں. تو ماشاء اللہ آج ہمارے پاس مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کی بات ہے. دارالافتاء مرکز الاولیاء لاہور کے بھی ماشاء اللہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، انس بھائی. تو ایک مفتی انس صاحب دارالافتاء اہل سنت لاہور داتا دربار یہاں بھی ہے. ایک دارالافتاء ہمارا اچرے میں بھی ہے، لطیف جولری پلازا میں. حاجی صاحب تشریف فرما، یہاں بھی تشریف فرما ہے مفتی صاحب. تو اگر ہم واقعی اس میں سنجیدہ ہوں، سیریس ہوں، ہے میٹر بڑے سنجیدہ، اہم میٹر ہیں. وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ آج کسی اسلامی بھائی کے ذہن میں کوئی کنفیوژن رہ گئی ہو. فوری طور پر میں نے دیکھا ہے ایک سب سے آسان کام وہ ہے کسی کو یہ بولے کہ آپ نماز پڑھا کریں، اور جی ماشاءاللہ روزے رکھیں، نفل روزے رکھیں، آپ حج کر لینا، آپ ماشاءاللہ عمرے پہ جانا چاہیے، آپ کو حج پہ جانا چاہیے. تو کہیں گے سبحان اللہ کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں. اچھا اب اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ آپ نے آج کے بعد فلم نہیں دیکھنی، آپ نے حرام روزی کی طرف نہیں جانا، حلال کی طرف جانا ہے، اور نہی عن المنکر، برائی سے منع کرنا، یہ ذرا تھوڑا مشکل کام ہے. نیکی کی دعوت دینا آسان ہے، برائی سے منع کرنا مشکل ہے. الحمدللہ مفتیان کرام تشریف فرما ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ انہیں اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ جو ہمارے سامنے تشریف فرما ہے اسلامی بھائی وہ کیا کہیں گے. یہ چیز جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. تو الحمدللہ عز و جل آج جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ترقی ہے، دعوت اسلامی دنیا کے 200 ملکوں تک پیغام پہنچا چکی ہے، اس کی ایک وجہ جو ہے وہ ہے شرعی اصولوں پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہی سمجھایا ہے کہ شریعت پر عمل کرنا، جو اللہ رسول کا حکم ہے اسی پر عمل کرنا ہے.
हमने दावत इस्लामी के मदनी काम को नहीं देखना, मदनी अतियात को नहीं देखना, चंदे को नहीं देखना, हमें जो अल्लाह रसूल का हुक्म है उस पर अमल करना। और माशाअल्लाह यही दावत इस्लामी की तरक्की और उरूज का राज जो मरकजी मजलिस शूरा समझती है वो यही है कि दावत इस्लामी को अल्लाह बरकत दे रहा है, उसकी वजह अल्लाह रसूल के हुक्म पर अमल करना है। यकीनन जिन्होंने आज शरई मामलात लिए, किसी को कोई हुक्म जायज़ कहा गया, किसी को नाजायज़ कहा गया, किसी ने कोई सवाल किया होगा, कोई काम करता होगा, उसके लिए जायज़ का हुक्म आया होगा, किसी के लिए नाजायज़ का हुक्म आया होगा। जो मुफ्ती साहब ने फरमाया, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहकामात की रोशनी में, शरीयत की रोशनी में इन्होंने जवाब दिए जो अल्लाह ताला ने इन्हें इल्म अता फरमाया, जो फरासत अता फरमाई। फिर ये अकेले तशरीफ फरमा नहीं है, इनके साथ माशाअल्लाह दारुल इफ्ता के और भी इस्लामी तशरीफ फरमा है। मेरा मशवरा जो है वो, अगर जो लोग दुनिया में दीन में तरक्की करना चाहते हैं तो जो शरई हुक्म आए हमें उस पर बिल्कुल लब्बैक कहते हुए अमल कर देना चाहिए। और वाकई अगर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमें इस पर अल्लाह की रहमत से उरूज मिलेगा, हमें इस पर तरक्की मिलेगी। कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई ये सोचे कि जनाब मैं तो जनाब ये अपने कारोबार को तब्दील करूंगा तो मुझे ये गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, तो मुझे ये घर भी तब्दील करना पड़ेगा, तो मुझे तो अब कारोबार ही तब्दील करना पड़ जाएगा। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हमारे यहाँ जो मुसलमानों का कॉन्सेप्ट है ना, यूं समझिए कि मर के मिट्टी नहीं होते हम इंतकाल करते हैं। हमारा क्या होता है? इंतकाल कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, है ना, इंतकाल ही होता है ना हमारा। तो जब इंतकाल हो जाता है ना तो आगे जो करेंसी चलती है ना, जो दूसरी करेंसी, मिसाल के तौर पे कोई उम्रे पे जाए उसको रियाल चाहिए, जो यूएई जाए उसको दिरहम चाहिए, जो अमेरिका जाए उसको यूएस डॉलर चाहिए, जो यूके जाए उसे पाउंड चाहिए, स्टर्लिंग पाउंड चाहिए, अगर वो चाइना जाएगा तो चाइना की करेंसी युआन चाहिए उसको, जापान जाएगा तो येन चाहिए। अब जब दूसरे मुल्क में जाएगा तो करेंसी कन्वर्ट करवाएगा, करेंसी कन्वर्जन चाहिए उसको, ये करेंसी पाकिस्तानी नहीं लेंगे वो। इसी तरह जब बंदा इंतकाल कर गया तो नोट नहीं चलेंगे, कपड़े नहीं चलेंगे, तोहफे नहीं चलेंगे, करेंसी कन्वर्ट करानी पड़ेगी किस में? नेकियों में। हम अपनी वालिदा के लिए सूट लेके आते थे हर साल ईद पर, छोटी ईद पर, बड़ी ईद पर। अम्मी का इंतकाल हो गया, अब ईद आई तो अम्मी याद आ रही, अब क्या सूट जाकर अम्मी की कब्र पे रखाएंगे हम? जी नहीं, उस सूट को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? निकियों में। अब खाला को तोहफे में दें, ठीक है ना, नानी को तोहफे में दें, किसी करीबी रिश्तेदार को तोहफे में दें, या किसी गरीब को तोहफे में दें जिसका हमें सवाब मिले, ठीक है, वो सवाब फिर अम्मी को सारा सवाब भिजवाएंगे हम। ऐसे ही है। तो करेंसी कन्वर्ट करना चाहे तो दावत इस्लामी के पास शोबा है, करेंसी कन्वर्ट कर देते हैं दावत इस्लामी का शोबा। वो आपके पैसे से मस्जिद बना देंगे, वो आपके पैसे से मदरसा बना देंगे, वो आपके पैसे को कोई आगे नेकी के काम में इन्वेस्ट कर देंगे, इंशाल्लाह इसका सवाब भी मिलेगा। जज़ाकल्लाहु खैर। मुफ्ती साहब का हुक्म तो फिर हुक्म ही होगा ना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी, हमारे माँ बाप की और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें नेक बना, परहेज़गार बना, माँ बाप का फरमा बरदार बना, आशिक रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बना। या अल्लाह अज़्ज़ व जल आज के इस इल्म दीन की मजलिस में शिरकत करना हमारे लिए कबूल फरमा ले। मौला इस इल्म दीन की मजलिस को हमारे लिए गुनाहों की मुआफ़ी का सबब बना दे। या अल्लाह अज़्ज़ व जल आज जितने भी इस्लामी भाई आए, या अल्लाह उलमा की सोहबत में बैठने का मौका मिला, मौला तूने हम पर करम फरमाया, हमें ये नेमत अता फरमाई, मौला इसमें और बरकतें और इजाफा फरमा, इल्म दीन की और मजालिस मौला हमें नसीब फरमा। इसी तरह हम मुफ्तियान किराम की, उलमा किराम की ज़ियारत करें, इनकी सोहबत में बैठें, इल्म दीन हासिल करें, शरीयत पर अमल करें, अपने तमाम मामलात को बशमूल कारोबार, घर बार, सारे मामलात को या अल्लाह
तेरे और तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म के मुताबिक करें। वरासत के मामलात, औलाद की तरबियत के मामलात, घर के मामलात, मौला सारे कामों को शरीयत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें अपना फर्मा बरदार बंदा बना ले। या अल्लाह तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। तेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला हमारे बच्चों को हाफिज कुरान बना, हमारे बच्चों को आलिम दीन बना दे, मुफ्ती इस्लाम बना दे। या अल्लाह दावत इस्लामी का बोलबाला फरमा। अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया के इल्म अमल में बरकत अता फरमा। या अल्लाह इनसे फैज़याब दुनिया में भी नसीब फरमा, इनके फैज़ व बरक़ात मौला इनसे आखिरत के नफ़ा हमें अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल बार बार हज की सआदत नसीब फरमा, बार बार मीठा मदीना चूमने की तौफीक अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ताज